السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، پچھلے دنوں آپ نے ایک خبر پڑھی کہ 75 سال تک محبت کی آگ میں جلنے کے بعد ایک 90 سالہ بابا جی نے 95 سالہ خاتون کے ساتھ بالآخر شادی کر لی۔ اسی طرح کا ایک نوبیاتا جوڑا آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی موجود ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم بابا جی۔ بابا جی سلام پہ کہیں دیں گے بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی ادھر دیکھیں، آپ حسب حال میں آئے ہیں۔ ہاں کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر بابا جی، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے اتنے سال پرانی محبت بالآخر پالی۔ خیر مبارک۔ یہ زرینہ کے ساتھ میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں گے۔ یہ میرا خیال ہے اس وقت کی بات ہے جب یہ نئی ریل گاڑی چلی تھی، تو ان کا گھرانہ اور ہمارا گھرانہ اکٹھے یہ ریل گاڑی پہ بیٹھ کے آئے تھے۔ اچھا۔ اور پھر یہ ادھر آ کے کہیں اور کسی گاؤں میں چلے گئے، ہم کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ تو 75 سال میں نے ان کو ڈھونڈا ہے۔ تو یہ مل تو گئی تھی 12-13 سال پہلے۔ تو ان کے وہ جو تھے نا وہ جو اب ہم ہیں وہ ان کے شوہر؟ ہاں شوہر ان کے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پھر ہمیں پتہ چل گیا تھا، مگر ان کی ابھی عدت پوری نہیں تھی ہوئی۔ تو اب عدت پوری ہو گئی تو ہم نے شادی کر لی۔ ماں جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک دے رہی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ خیر مبارک۔ بڑی خوشی ہوئی نہیں بابا جی تاڑے بیاہ دی تے جانج کوڑی تے لے گئے سو؟ نہیں 1122 منگوائی تھی۔ جائیں تے پھر 3 گھنٹے پہلے چلے گئی ہونی، کیونکہ 1122 تے بڑی تیز جاندی، نالے لوکی رستہ دے جاندے انہوں۔ ان کو ڈولی میں لائے تھے پھر۔ اچھا۔ ان کی طبیعت خراب تھی، ڈولی میں ہی گلوکوز کی بوتل لگوائی۔ اگلے دن ولیمہ تھا نا، اچھا۔ ہم نے ولیمے پہ بھی 1 ڈش ہی پکائی ہے۔ یہ بہت اچھا۔ 1 ڈش میں کھچڑی بنوائی تھی، اور سویٹ ڈش میں ساگودانہ۔ ہم نے نہیں کھایا ساگودانہ، ہم نے تو دودھ پلائی کی رسم بھی نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر نے دودھ منع کیا ہوا ہے، اس لیے دودھ پلائی کی جگہ جو شاندہ پلائی کر لی تھی۔ ان کو بھی ڈاکٹر نے روٹی منع کر دی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے اتنا کچھ منع کیتا ہے، شادی تو نہیں منع کر دی کتے؟ ان کو بتاؤ کہ ڈاکٹر نے روٹی کھانے سے منع نہیں کیا، پکانے سے منع کیا ہے۔ یہ انہوں نے مجھے کہا تھا یہ مشہور کر دو اپنی فیملی میں کہ ڈاکٹر نے ان کو روٹی پکانے سے منع کیا ہوا ہے۔ کہتی ہے میری ساس ورنہ مجھ پہ ظلم کریں گی۔ آپ کی ساس زندہ ہے؟ نہیں، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، مگر ہے تو ساس ہی نا۔ ایسے رشتے میں کئی ساس لگتی ہیں ان کی، ہم اکٹھے رہتے ہیں سارا خاندان۔ ہم گاؤں میں 16-17 فیملیاں اکٹھی رہتی ہیں، سب ناراض ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ بس ہم نہیں نا ان کی طرف گئے۔ لوگ جب شادی ہوتی ہے تو کبھی چچا کی طرف دعوت، کبھی ماموں کی طرف دعوت، کبھی کزن کی طرف دعوت، کبھی تایا کی طرف دعوت۔ ہم جب سے شادی ہوئی ہے کبھی دل کے ڈاکٹر کے پاس، کبھی کڈنی والے ڈاکٹر کے پاس، کبھی ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس، کبھی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس۔ اب ادھر سے فارغ ہو تو رشتہ داروں کی طرف جائیں۔ اچھا بابا جی، ہنی مون کا کیا پلان ہے، کہاں منانا ہے؟ دانتوں والے ڈاکٹر کے پاس۔ اور ڈاکٹر گلریز کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو بیڑ بنا کے دوں گا، دانتوں والا۔
हाँ, मैंने कहा जरूरी है ये बनवा के दो, मैं लगा लूंगा। कह रहा था नहीं, लगाने वाला नहीं दूंगा, लगाने वाली तो जो बुनियादी है वो भी तबाह हो चुकी है। कहता था बना दूंगा, हाथ में पकड़े रखना। हाँ, शोरबा इधर से खा लेना, बोटी यहाँ चबा लेना। दूल्हा बाबा ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ? नहीं, ये फोटो नहीं खिंचवाती। फोटो ना खींचना। अच्छा, ये शर्माती हैं। मुझे कह रही थी कि गोगे सिर्फ तुम मेरी फोटो खींचो और मैं किसी से नहीं खिंचवाऊं। गोगे गोगे मेरी फोटो बना दे, फ्रेम करा के ओनू कंध नाल ला दे। गोगे गोगे अल्लाह से खैर मांगो, अभी तुमने बहुत सारी खुशियां देखनी। बाबा जी आप कौन सी खुशी देखनी है? अभी तो सी पैक बना हुआ देखना। वैसे बाबा जी हैरत अंगेज बात है कि इस उम्र में भी आपकी मोहब्बत बरकरार है। हम तो नहीं थे करनी चाहते शादी, मगर वो लड़का है ना शायर इस्लाम अमजद, अमजद इस्लाम अमजद, हाँ, उसका शेर सुना जब तो फिर हमने शादी का सोच लिया। कौन सा है? वो अमजद कहता है कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। गोगा जी पानी का जिक्र ना करें। क्यों? ठंड लगी जी वे, मैनू ठंड लगी जी। वैसे ये कमाल है कि ये जानते हुए भी कि लोग मजाक करेंगे, आपने अपनी मोहब्बत निभाई है। हाँ, लोग तो फजूल मजाक करते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। सही। वो जब मौलाना आए ना, वो निकाह बढ़ाने के लिए हमारा, तो पीछे से एक मंचले ने आवाज लगा दी, कहते हैं कारी साहब आए थे हो निकाह ते पढ़ाया ही तुसी नाल एडवांस जनाजा भी पढ़ाया जाओ। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे। कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपकी उम्र ही क्या है? पहले ही हमारी शादी लेट हो चली थी। क्यों? हमने कहा नहीं, और कोई शहवाला बना लो, शादी इसी दिन होगी। हुआ क्या? वो जिस दिन हमारी शादी थी ना, उस दिन जो हमारा शहवाला बनना था ना, हमारा भतीजा, उसका दिल का ऑपरेशन था। वो ऑपरेशन के दौरान ही फौत हो गया। फिर सबने कहा था कि 72 साल तुम्हारी उम्र है, ना करवाओ ऑपरेशन। तो अगर वही शहबाला होता तो गई थी ना उस दिन हमारी शादी। 72 साल का शबाला? ਪਾਉ ਜੀ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਰਬਾਲਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, 74 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਬਾਲਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਡੀਜੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। वो इनको हमारा पहला रुक्का उसी ने मरहूम ने पहुंचाया था। उस रुक्के में दिल बना हुआ था, तो दिल के हाथों ही मर गया बेचारा। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाई जी आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब है कि मैं ठंडे पानी नाल ना बैठा, गल आपसे आपा बैठा। सीधी बात है, ठंड लग रही थी इसलिए स्वेटर पहन लिया। सवाल क्या था? उस वक्त से मेरे पीछे पड़े हुए, आज भी गैले से लगाओ, आज क्यों स्वेटर पहन लिया? अच्छा। यार ठंड लग रही है, गैले से लगाए हुए हैं, मगर स्वेटर पहन लिया, इसमें कौन सी? मैं 62 की खिलाफ वर्जी नहीं करता, सच बोलता हूँ, जो है दिल में मैं बता दी। यार वैसे ये क्यों इन्होंने 62 को मजाक सा बना लिया? बहुत बड़ा सवाल है। जवाब ये रहा छोटा रखना, क्योंकि सेगमेंट 7-8 मिनट का ही होता है। मैं जवाब की तरफ नहीं आता, मैं उल्टा तुमसे सवाल करता हूं कि जिस चीज का मजाक बनाया जाता है आम तौर पे, पहली बात तो है कि पूरे पाकिस्तान में तुम सर्वे करके देख लो, जिन लोगों को पता है कि 62-63 है क्या, वो इसको ज्यादातर क्या, मैं समझता हूं कि 95% लोग
اگر منہ سے نہیں کہتے تو دل سے اس کو ناقابل عمل ضرور سمجھتے ہیں. سچی بات یہ. اسی لیے ناقابل عمل ہے یہ ایک بڑا سوال ہے نا. اسی لیے تم دیکھو کہ جسٹس آصف کھوسہ صاحب نے پاناما لیکس کی سماعت کے دوران یہ کہا ہے نا کہ باسط ریزر پر اگر عمل کیا گیا تو صرف سراج الحق کی بچے گا, باقی سب کی چھٹی ہو جائے گی. تو اگلے دن خیر انہوں نے اس پر ندامت کا اظہار بھی کیا, یہ ان کی گریٹنس ہے کہ انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے. لیکن اس کو ناقابل عمل سمجھنے میں ہم کم و بیش ساری سیاسی جماعتیں اور پوری پاکستانی عوام برابر ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا, حالانکہ ہے کیا باسط ریزر کہ پوری دنیا میں رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہے, کچھ قواعد و ضوابط ہے. تو اگر ہمارے آئین نے, ہمارے ارکان قومی اسمبلی نے, ارکان پارلیمنٹ نے اپنے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں تو اس پہ اعتراض کی گنجائش کیا ہے؟ پھر اس کو عجیب و غریب خانوں میں ہم نے تقسیم کر دیا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو اسلامی شقیں ہیں, یار اسلامی شقوں سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ اسلامی شقیں انسانی شقیں نہیں ہیں خدا نخواستہ؟ پوری دنیا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا جھوٹ بولنا جائز ہے؟ بالکل نہیں. وہ تو ہر مذہب میں, ہر مذہب میں, ہر قوم میں یہ ہے کہ کیا ایماندار ہونا یہ غلط بات ہے؟ یہ اسلامی ہے صرف. رکن پارلیمنٹ کے لیے ایماندار ہونا بنیادی شرط ہے. اب اگر آپ کو اسلامی ٹرمینالوجی سے اختلاف ہے تو ہم لفظ بدل دیتے ہیں یار, لیکن خدا کے لیے ان پر تنقید تو نہ کرو, ان کو ناقابل عمل تو نہ قرار دو. آج صادق اور امین پوری دنیا میں انہی دو بنیادوں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں. انہی دو بنیادوں کی خلاف ورزی پر ارکان پارلیمنٹ کو ان کی نشستوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. یار انہی دو شکوں پہ عمل کر کے قومیں کہاں کی کہاں پہنچ گئی. ہم ادھر ہی لگے ہوئے ہیں. ہم پوری دنیا کے اوپر جلیل کس لیے ہو رہے ہیں؟ صرف ان دو شکوں پہ نہ عمل کر کے. اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی فیصلہ کون کرے گا؟ وہ فیصلہ جیسے پوری دنیا کی پارلیمنٹس کرتی ہیں, پوری دنیا کی عدالتیں کرتی ہیں. یہ 2010 میں برطانیہ کے ایک سابق وزیر اور رکن پارلیمنٹ کو نہ صرف اس کی نشست سے محروم کر دیا تھا بلکہ 3 سال کے لیے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی تھی. نہیں تو اس مسکین انگریز نے کیا کیا تھا؟ الیکشن کیمپین میں اپنے مخالف پہ کوئی جھوٹا الزام لگایا تھا. اللہ معاف کرے. تو یہاں پہ تو یہ توپیں کھلی ہوئی ہیں الزامات کی, اور ادھے تو بہتے بعد میں خود بھی مان جاتے ہیں کہ وہ میرا سیاسی بیان. یہ تو ایسی میرے ذہن میں آ گئی ہے تو میں نے بتا دیا, ورنہ یورپ اور امریکہ میں ایسی درجنوں نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. مگر سیگمنٹ چھوٹا ہے. سیگمنٹ چھوٹا ہے. ہاں جی, اور سیگمنٹ بھی چھوٹا اور ہمارے ذہن بھی چھوٹے ہیں. سچ مچ سارے سیاستدان ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ کہیں اس شک پہ, اس آرٹیکل آئین کے پہ عمل ہو گیا تو واقعی وہ بیچارے ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم سارے ہی ریجیکٹ ہو جائیں گے. کن باتوں کو ہم اسلامی شقیں کہتے ہیں؟ اسلامی شق, اس میں اسلام کہاں سے آگے کہ رکن پارلیمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھدار ہو. دنیا میں کہیں پہ پاگل رکن پارلیمنٹ بن سکتا ہے؟ وہ دماغی طور پر ٹھیک ہونا چاہیے. یار پاگل بھی اگر بنتے ہوتے تو تھیلا اور گوری پارلیمنٹ میں نہ بیٹھے ہوتے. سوری, کس کی بات ہو رہی تھی؟ پاگل کی؟ نہیں یار, یہ تو ہمارے دونوں دانشور ہیں. عزیزی, ہماری اکثر شکوں کو ہمارے سیاستدان بم شک سمجھتے ہیں. اب بچپن میں نہیں تھا ہوتا بم شک. مجھے تو میرے ایک سوال کا جواب دو. جب سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ 62-63 پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے یا اس کی ویلیڈیٹی پہ سوال اٹھاتی ہے, تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جن 10-12 ارکان اسمبلی کو آپ نے 62-63 کی خلاف ورزی پر ان کی نشستوں سے محروم کیا ہے تو کیا پھر ان کو ریسٹور کر دیا جانا چاہیے؟ بالکل. اور اکثر ہمارے یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس میں ابہام پایا جاتا ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. اور بھائی کو اگر ابہام ہے تو اس کو دور کرو, اس کو کلیئر کرو. مگر یہ ہونا تو چاہیے نا بھائی. جو بندہ صادق اور امین ہی نہیں ہے, خدا کے واسطے اس کو اتنی بڑی ذمہ داری کیوں دے رہے ہو؟ اس نے اگر بے ایمانی یا جھوٹ بولنا ہی ہے تو اس کو کہو بھائی جی ریڑھی لگا لو اور وٹوں کے نیچے موری کے اندر لوک پار لو, اور اپنی تکڑی جو ہے اس کے پیندے کے اوپر بھی کو لوک شوک لگا لو, یا فروٹ لال کرنے کے لیے اوپر لال بلب لگا لو. بالکل اس طرح کی کو بے ایمانی کر لو. اب قوم کی تقدیر نہ برباد کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں گھس جاؤ. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی آئندہ پالیسیوں کے خد و خال واضح کرنے کے لیے
पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको सीधा उधर ही लिए चलते हैं। ਲੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜ਼ਬਾਬਤ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। जी ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सवाल और क्वेश्चन में क्या फर्क? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी भी सुन ले पहले बात। अब मेरे वाल हाथ इंज करके गल नहीं करनी। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਟਰੰਪ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤਾ ਲੱਗਾ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ। अच्छा चले चले ना पुत बदतमीजी ना कर। अच्छा चले चले तेरे रंग दे या ओबामा अमरीका दा सदर आ, मैं ओनू कख नहीं समझदा ते तू कौन है मेरा पुत? अच्छा चले चले मेरी बात हाँ, मेरी ये अपने हाल करो हाथ, और जिस तरह तरला मिन्नत करके नहीं गल करते अमरीका दे नाल, उस तरह करो, इस तरह एक मिनट मेरी बात सुने। आपने गुज़िश्ता रोज अमेरिका के अंदर जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और सहाफियों के साथ आपने जो रवैया रवा रखा है, बल्कि बदतमीजी की है, पूरी दुनिया के ज़राए इब्लाग उस पर एहतजाज कर रहे हैं। ना तो मैनू दुनिया का डर लगा। नहीं, जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे हम कुछ नहीं लिखेंगे। अगलो चबले जाइए, माफी नहीं मांगेंगे। मैं पुत इथे मेज दे उत्ते चढ़ के कन्न फड़ाउणे आ तैनू। इन्हें आपने मैनू अब मेरी गल सुन पुत, एक मिनट ठहर जा। जुनैद पुत, एक गल ते याद रखी, मैनू दुनिया दा कोई डर खाओ अच्छा मुझे पुत पुत ना कहें प्लीज। ना ते होर तेनू मैं चाचा जी कहना शुरू कर दे। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ओ मेरा नाम ना जर्नलिस्ट ते मौज कर। मैं अंग्रेजी अखबारां दे जर्नलिस्टां कोलों नहीं डरदा। दस तुहाडी ते अपनी लड़ाई नहीं मुकन डई ते मैनू की डराउणा तुसां? आप अपने हुलिये से, अपनी गुफ्तगू से, वज़ाकता से कहीं से अमरीकी सदर लगते हैं। ਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਦਰ ਦੇ 4 ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਨੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਨੱਕ 'ਚ 4 ਨਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਡੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा चले चले छोड़े, आप जुगतबाजी पे उतर आए। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। जुगत मेरे मुंह निकल जावे ते होर गल। मैं करदा नहीं जुगतबाजी। मैं पुत अमरीका दा सदर आ, मेरा नाम अमानुल्ला खान है। नाले मेरा पुत, मैं अगर जुगतां करन वाला हुंदा ते मैं आंदियां सब तो पहले तुहानू दसदा कि इहो जे हैट वाले बकरे मदारी कोल हुंदे आ, प्रेस कॉन्फ्रेंसां च नहीं बजे हुंदे। अच्छा चले मेरे इस सवाल का जवाब तो देना कि अब आपके खिलाफ ये सबूत बाकायदा चीखने लगे हैं कि आप रूस की मिली भगत से अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं। बहुत पहली गल तो यह है कि जेडे सबूत चीखन लग पे ना, पहले तो उन्होंने मुंह च चूसणियां दबाओ, क्योंकि हुण आ गया ट्रंप सदर। सबूतां दे चीखन नाल सिवाए गला बैण दे होर कुछ नहीं होना। मैनू किसी दा डर खौफ नहीं। मेरे ते भावें रशिया दा इल्जाम लाओ ते भावें मेरे ते वियतनाम दा इल्जाम लाओ। रशिया नाल मैं करना प्यार, क्योंकि प्यूटन जिहड़ा पोते अपना। अच्छा क्योंकि जिड्डा चिट्टा रंग ओदा ओडा ही चिट्टा मेरा। ते मैं पुत गोरियां दा सदर बनिया, मैं इन्हां दा सदर नहीं बनिया जिहड़ा टैन ते चढ़ के बैठे आ परिंदे। सर ट्रंप प्लीज, ये मेरी आपसे दरखास्त है कि आप कम से कम हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखें। इंतहाई सीनियर, ये जिनका मजाक उड़ा रहे हैं ना, ये जिन्होंने हैट पहना हुआ है, ये इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट है। पुत्ते सारी तेरी गल च पहले ते इंतहाई गलती है, फिर सीनियर गलती है, फिर जर्नलिस्ट गलती है, फिर पेंट कोट च होना ही गलती है, फिर तेरी ये हरकत गलती है कि तू मेरा इम्तिहान पवान नहीं है। मैं बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करन आया, मैं को बांदर दा तमाशा देखन नहीं आया। आप बोलो ना, शाह महमूद कुरैशी के सामने तो बड़बड़ बोलते हो। ओए ये किन्ने ना लिया शाह महमूद दा? पुत मैं तेरियां बावां तोड़ छड़नियां जिहड़ियां तू पैंट च बाड़ीਆਂ ते लत्तां भी मैं तेरियां तरोड़ छड़नियां जिहड़े ते तू कोट टुंगे आ। क्या कह दिया उस बेचारे ने? ओ हद हो गई है, शाह महमूद दा नाम नहीं लेना इत्थे। क्यों? ओ मेरी मखाल औरत दे नाल सिर जोड़ जोड़ फोटोआं लभाउंदा रिहा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖੁਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਟੱਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। मिस्टर ट्रंप, आपको थोड़ा सा भी एहसास है कि आपकी हार्श पॉलिसीज की वजह से दुनिया किस कदर तेजी से आपके मुखालिफ हो रही है? ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੁਨੀਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਕਲੱਬੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਰ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ 400 ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਧਵਾਉਣਾ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਆ ਪੁੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਛਾਕਿਆ ਤੂੰ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਕਜਨ ਕੁਜਨ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਇਦੋਂ ਦੂਰ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕੂੜ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਪੁੱਤ ਜਰਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੋ। ਮੈਂ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੱਢ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ। ओबामा पे अब आपको किस चीज का गुस्सा है? ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਮਝਿਆ? नहीं नहीं, वो तो नहीं है। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ? ਹਾਂ, ਸਮਝ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। क्या? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ CIA ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਟਰੰਪ ਇਹ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਣਾ ਤੇ ਭੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਓਬਾਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਲਓ ਬਈ ਅਮਰੀਕੀਓ ਬਣਾ ਲਵੋ ਚਿੱਟਾ ਸਦਰ। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, मुझे कुछ दिन पहले अमजद साहब का फोन आया था। सलाम कह रहे थे मुझे। हाँ, सलाम भी कह रहे थे आपको, वालेकुम और अस्सलाम। एक वो तनाज़े का हल भी चाह रहे थे। कहते थे कि आप दोनों शायरी के मसले पे लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसमें आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि आप दोनों अपने अपने शेर पढ़ दिया करें, उसके बाद ये फैसला मुझसे करवा लिया करें कि किसने अच्छे शेर पढ़े। नहीं तो अमजद साहब ने तो तुम्हारे हक में ही फैसला देना है। क्यों? मेरे क्लास फेलो है। नहीं उन्होंने तुम्हारे हक में ही फैसला देना है। मुझसे तो वो वैसे ही जेलस है। तुमसे जेलस है? हाँ हाँ, तुम तो उनके बच्चों की तरह हो, तो मैं तो उनकी टक्कर का शायर हूँ। कानों को हाथ लगाओ। चलो यार, कानों को हाथ लगा देते हैं, ऐसी कौन सी बात। अपने जी अपने इधर मैं यार सर्दियों ने गर्म करना नु हाथ लाने। वो बड़ी सख्त करंट पड़ी है यार। वाकई मुझे भी पढ़ा करंट। यार खुदा के लिए गौरी, अपने हाथ में अर्थ की तार रखा करो। यार अमजद साहब ने तुमसे क्यों जेलस होना है? भाई जी, मेरे शेरों के मुतल्लक पूछना है तो हनीफ पंक्चरवी से पूछो। शेरों के बारे में? हाँ, ऐसा पंक्चर लगाता है तुम हैरान हो जाओगे। सलोशन के बगैर ही जोड़ देता है। मेरा पूछना है तो नईम तुन्नी से पूछो। मेरा पूछना है तो मुदस्सर अयूब तेज पति वाले से पूछो। बस करो। मेरा ख्याल है कि आज के शेरी टाकरे में हम वाकई अमजद साहब की खिदमात मुस्तार लेते हैं, उनसे पूछेंगे जरूर, ठीक है ना? चलो फिर हार जाएंगे, कोई ऐसी बात है। पता है ना मुझे एक बात का पता जो होता अच्छा चलो, मैं आगाज करता हूँ। सऊद उस्मानी के 2 शेर हैं। अपने शेर नहीं सुनाता। जब हार जाए तो फिर कह देता है कि भाई जी मुझे क्या, शायर हारा है, वकील तो नहीं ना हारा। निकालते रहे ये लोग खामियां मुझ में, निकालते रहे ये लोग खामियां मुझ में, और उसके बाद बची सिर्फ खूबियां मुझ में। हाय हाय हाय। सफर से आता हुआ बकरियां चराता हुआ, सऊद कोई गडरिया है नगमा खां मुझ में। वाह, क्या कहने। निकालती है वो हर रोज खामियां मुझ में, निकालती है वो हर रोज खामियां मुझ में, छुपा हुआ है निखट्टू सा एक मियां मुझ में। वगरना सब ही मुझे अक्लमंद कहते थे, बताएं उसने के ये है बाउंगियां मुझ में। ये बात तब की है जिस वक्त मैं कंवारा था, किसी जमाने में होती थी शोखियां मुझ में। ये और बात है कि वो निभा न सका मोहसिन, ये और बात है कि वो निभा न सका मोहसिन,
मगर जो किए थे उसने वो वादे गजब के थे। ਇਹ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਨਾ। वो सूख सूख के लगता है बेर हो जैसे, वो सूख सूख के लगता है बेर हो जैसे, पड़े हुए जो टमाटर फ्रिज में कब के थे। मुलाजमा पे ये एहसान है किया देकर, पड़े हुए जो सालन फ्रिज में कब के थे। अच्छा जी, ये जो कहते हैं कि मर्द कभी नहीं रोता, भाई काम का नहीं रोता है, क्यों नहीं रोता मर्द? दिल से ये मैल धो कभी, रंज मिले तो रो कभी। दिल से ये मैल धो कभी, रंज मिले तो रो कभी। अपना सकूत खत्म कर, कोई खुदा नहीं है तू। वाह जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जब परजाई चली जाती है ना अपने कमरे में, तो बाद में फिर ये बेचारा अपने आप को कहता है। चूल्हा मेरा जला कभी, चल रात को ही आ कभी। बहुत अच्छे। चूल्हा मेरा जला कभी, चल रात को ही आ कभी। या गैस तुझको देख लो, जिंदा है या नहीं है तू। गीजर भी फौत हो गया, पानी है के निरी सजा। फक फक हूं तेरी सुन रहा, हीटर चला नहीं है तू। ए हीटर चला नहीं है तू। अच्छा, अली ज़रियून के चंद शेर सुनो यार जी। ये तमाशा सा क्या लगा हुआ है, चौक में आईना लगा हुआ है। वाह। मर्जियों का मर्ज है चारों तरफ, जिसको देखो खुदा लगा हुआ है। वाह जी। हम भी कोशिश में हैं कि जी लग जाए, जिस तरह से आपका लगा हुआ है। तेरी हर बात मानते जाएं, हम पे तो दिलरुबा लगा हुआ है। अब तो तंज भी नहीं करता, उसको कुछ बुरा लगा हुआ है। बहुत क्या ये थोबड़ा लगा हुआ है। इफ्तिखार ठाकुर के मुतल्लिक शेर अर्ज किया है। क्या ये थोबड़ा लगा हुआ है, तेरी गर्दन पे क्या लगा हुआ है। सिर्फ वो कामयाब है प्यारे, बस यहाँ जिसका दा लगा हुआ। बहुत अच्छे। अच्छा अच्छा। क्यों फिरे वो न चौड़ा हो कर, अब्बा अफसर बड़ा लगा हुआ। अब मिलावट ही हजम होती है, मुंह को ये जायका लगा हुआ। क्या कहने। साथ है कर रहा दुआ जिसका, मैच ऊपर जुआ लगा हुआ। अरे वाह, अरे वाह। पुलिस बोले जुबान मुखालिफ की, उसको पैसा बड़ा लगा हुआ है। अरे वाह। अजीजी, इतनी गहराई आपके शेरों में, खाई में बैठ कर लिखते हैं। अच्छा लिखने के लिए समुद्र की तह में उतरना पड़ता है। वहां फिर जब शेर मुकम्मल हो जाए तो वापस मगरमच्छ करा के ऊपर आता हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा जी, आखिर में जॉन एलिया के दर्शन। बहुत दिल को कुशादा कर लिया गया, बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या। तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली, अच्छा तो खुद अपने को आधा कर लिया क्या। हुनरमंदी से अपने दिल का सफा, मेरी जान तुमने सादा कर लिया क्या। वाह जी वाह। किसी कुर्सी पे टिकना चाहते हो, किसी कुर्सी पे टिकना चाहते हो, करप्शन का इरादा कर लिया क्या। गली सारी लगा कर बाड़ मल ली, मकान अपना कुशादा कर लिया क्या। किसी बट को तो आ लेने देते, पराठा खुद ही आधा कर लिया क्या। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। ऐसी अजीब सूरत हाल है आजकल, लोग इस तरह एक दूसरे को इजी लेते हैं कि बंदे किसी को मैंने पता पूछा, मैं गया इधर तो ले फ्लैटों की तरफ, मैंने कहा भाई जी वो फलां का कार किधर है, कहते जी अगर सज्जे हथ हो गया, अगर खब्बे हथ हो गए तो सामने ही ये कार। सज्जे हथ हो गया, मैं खब्बे हथ होया तो आगे कंध थी। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या बेवकूफी की है इस बंदे ने। मैं वापस आया हूं उधर, मैं कहा हजूर आपसे मैंने एड्रेस पूछा था,
आपने कहा जी कोई सज्जा तो कि खब्बिया तो जो सामने कार है, तो वो तो आगे दीवार थी। आगे से मुझे कहता है अच्छा, फिर वो मकान ढा के कंध बना के चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि भाई साहब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार देखो ये बंदा मेरे साथ मजाक कर रहा है। इतने सीरियस आदमी के साथ मजाक। यार अगर मैं आकर तुम लोगों के पास बैठ जाता हूँ ना तो इसका ये मतलब नहीं कि- जिसके साथ टाइम तय है ना तुम चले जाओ, जिसके साथ भी टाइम है चले जाओ। देख ले डायरी देख ले। यार मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं फिर चला भी जाऊंगा। मैंने रोका है। आज नहीं ना मेरा किसी के साथ टाइम, फिर मैं क्या करूं अब? यार मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे कोई एड्रेस पूछता है तो उसको सही बताएं, हाँ जी। मजाक ना उसके साथ करें। हो सकता है चलो मैं तो वैसे ही उधर दोस्त को मिलने गया था, शायद को बेचारा को अल्लाह माफ करे, को मुसीबत में है उस वक्त, उसका टाइम जाया ना करे। अगर नहीं आपको पता तो उसे कह दे भाई जी किसी और से पूछ ये भी मुफ्त की नेकियों में से एक नेकी है जिसपे आपकी कोई मेहनत नहीं लगती। हाँ जी, क्या है आज की खबर? पहली, बराक ओबामा का अलविदाई खिताब, अहलिया का शुक्रिया अदा करते हुए रो पड़े। ये वैसे ये अहलिया का शुक्रिया अदा करते हुए ओबामा रोया या आने वाले वक्त को याद करके रोया? हाँ हाँ, अपने आप प्राइवेट घर में जा रहे हैं ना जी, तो यार उधर जाके तो फिर बेगम ही होनी है, नौकर चाकर अफसर उफसर तो होने नहीं पास। व्हाइट हाउस में तो फिर बेचारे की बचत हो जाती थी। मशल ओबामा को उठा के चीज मारने लगती थी तो फटाट कह देता ना मारना ना मारना, वो फवाद हसन फवाद देख रहा है। उधर कहाँ चला गया फवाद हसन फवाद? यार वो भी सदर है, मुल्क का सरबराह है, उसका कोई फवाद हसन फवाद नहीं होना। हर सदर, हर वजीर आजम का कोई ना कोई फवाद हसन फवाद होता है। ये आज मेरी बात याद रखना, तुम इतने सीनियर सहाफी हो, हर सरबराह का एक फवाद हसन फवाद होता है। हर फवाद का एक अपना सवाद होता है। यार फवाद का कौन सा स्वाद? ये फवाद है, ये खरबूजा है, स्वाद होता है। नहीं, बाकी आने वाले वक्त को बेचारा याद कर रहा होगा कि अब सारा काम भी खुद ही करना पड़ेगा। इधर तो बेचारा रिक्वेस्ट कर लेता था ना कि बेगम आज किसी और से बर्तन मंजवा लो, आज बेल्जियम के सदर ने मुझे मिलने आना है। कई दफा तो आगे से भाभी मशल कह देती थी बेल्जियम के सदर ने आना ना तो कोई गल नहीं, ਉਹਨੂੰ भी सिंक ਦੇ ਕੋਲ ਖਿਲਾਰ ਲਵੀ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਟਾਕੀ ਵੱਜੀ ਹੋਣੀ। जानू ना करो, क्या कर रही हो? बेल्जियम का सदर हाथी और नहीं पांडे मांगदा होना बेल्जियम का सदर, ओदे की हाथ टुंडे ने नाम रात दे। अच्छा जी अजीजी जी, ये सदर भी आम आदमी की तरह रोता है? नहीं जी, वो इस तरह रोता है। इस तरह रोता है। अजीब अजीब से दानिश्वर है ये लोग। इतना नहीं पता कि सदर भी आखिर आंखों से ही रोता है बेचारा, उसके कानों में से आंसू तो नहीं ना निकलते, या उसके पानी के आंसू नहीं होते, उसकी आंखों में से बजूरी शरबत निकलता है। कल कला को मैं सदर बन गया तो फिर ये पूछते फिरेंगे तुमसे कि यार ये सदर किस तरह का होता है? कहाँ का सदर बन रहे हो? यार हमारी गली के इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ, वो सारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि यार हर बारी हमें पढ़ा लिखा अक्लमंद बंदा सदर बना के देख लेते हैं, कुछ भी नहीं होता, ऐद की ये नहीं बनाओ, बेवकूफ सदर बनाओ। और नहीं यार ज्यादा अक्लमंद सदर। अच्छा तो क्लियर करो ना। अच्छा जी, खबर सुने। चकवाल के तारीखी इलाके कटास राज में खिताब के दौरान नवाज शरीफ ने कहा, मैं सिर्फ मुसलमानों का वजीर आजम नहीं सबका हूँ। इस मौके पर वजीर आजम ने शेर भी सुनाया, मस्जिद टादे मंदिर टादे, टादे जो कुछ कहंदा, एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिला विच रहंदा। टादे जो कुछ कहंदा, ये नवाज शरीफ साहब का नहीं, शहबाज शरीफ का शेर होगा। हाँ हाँ, ये टादे जो कुछ कहंदा, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब उधर भी ऑरेंज ट्रेन बनाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा टादे जो कुछ कहंदा। शहबाज शरीफ साहब को स्कीम सोच रहे होना कि इतने की बनाइए, तो वो कहते हैं कि यार तुसी ढाओ तो सही ना, फिर सोच रहे नहीं है की बना। ये देखो ना आधा लाहौर टट्ठा हुआ है, ऑरेंज ट्रेन बनेगी कभी। हाँ जी। यार वो अदालतों में स्टे हुए हैं, क्या किया जाए? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले टवा देंगे ने फिर केस लड़ने होंगे। अच्छा बहरहाल तुमने शेर के मफहूम का सत्यानाश कर दिया। क्या हुआ जी? मतलब सीधा सीधा है कि इंसान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत। हाँ, दिल नहीं किसी का तोड़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने किसी का दिल तोड़ा। अच्छा जी अजीज साहब सुने जरा, शेखोपुरा में पुलिस का अजीब कारनामा,
पुलिस ने 2 साला बच्चे पर 60 साला शख्स को गोली मारने का मुकदमा दर्ज कर लिया। पेशी पर आया बच्चा वालिद की गोद में सोता रहा। किन्ना तरस खा रहे हो बच्चे ने, किन्ना तरस खा रहे हो? साडे कोलों कोई नहीं पूछता कि होया की है, वाकया की है। एक खबर बना के ਉਹਦੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। नहीं सर होया की है, होया की है, होया की है। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਚ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਤੇਰਾ ਨੀਵੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਬਣ ਖੁਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਦਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ? क्यों पकड़ा? ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੀਡਰ ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਫੀਡਰ ਚ 30 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੀਡਰ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪੈਂਪਰ ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕਰ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਏਡਾ ਚਲਾਕ ਮੂੰਹ ਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੋ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੱਢ ਬੁਲਬੁਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੋ ਨੂੰ ਮੀਟੂ ਪੁੱਕਾ ਪੁੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਕੁਝ अपने बच्चों को ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਦੁੱਧ ਸੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੀ ਰੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਂਪਰ ਗੰਦਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਪਰ ਬਦਲਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੱਤੇ ਉਹ ਸੌਰੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਥਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪੱਪੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਧਰ ਬਈ, ਇਹ ਅਗਰ ਪੈਂਪਰ ਗੰਦਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰਾ ਦੇ ਛੱਡਣੇ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਕੜੂ ਕੜੂ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। कितने चले हो? ਉਹ ਹਾਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।